गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, friends. Welcome. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Today we are going to see a simple case of psychosis, and then the second phase of psychosis. We have seen the first phase of psychosis, that is psychosis excess. Now today we will see the psychosis less. Second type of psychosis. So first we will see the case. A man who came for help for his allergic rhinitis and easy spraining of ankle and backache. So mostly the cervical problem, lumbar problem, joint problem, cartilage problems come after the suppression of rhinitis, suppression of acidity, gastritis. Yes. So made it clear that he had a sneezing attack when he was exposed to flowers at near quarters. So allergy from flowers, pollen grains, etc. So he got backaches when he had to sit for 40 hours at a stretch. After a 2.5 hour history, he never mentioned why he could not avoid flowers which aggravated him. सो अगर फ्लावर से इतनी एलर्जी है, फ्लावर से इतना प्रॉब्लम होता है, तो वो फ्लावर अवॉइड क्यों नहीं करता है? तो उसका भी एक बहुत अच्छा रीजन सर ने यहाँ, वो पेशेंट ने रीजन यहाँ दिया है. व्हाट वाज दैट विच ब्रॉट हिम क्लोज टू फ्लावर्स? यस. तो ऐसा कौन सा रीजन था जिससे वो फ्लावर्स के इतने कांटेक्ट में आता है, बार बार ना क्लोज कांटेक्ट होता है? When he accompanying person was questioned for details, he disclosed that the patient was a very well known spiritual and philosopher or philosophical advisor who had improved lives of thousands of people in the city of Mumbai and in the rural areas. ना, तो कल जैसे केस हमने मसीहा की देखे थे, शी वॉज मसीहा. नाउ द सेकंड केस स्पिरिचुअल फिलोसोफर, ना, जो सत्संग करते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, उन लोगों का मोस्टली कांटेक्ट आता है फूलों से, है ना. वो जिस डायस पे बैठेंगे उसे फूलों से सजा देंगे, लोग वहां फूल लेके जाएंगे, हार लेके जाएंगे, बुकेज लेके जाएंगे. सो फूलों से क्लोज कांटेक्ट इन लोगों का होता है, इसलिए. और ये अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि शिष्य ने लाके दिया, है ना. हमारे शिष्यगण फूल लाते ही है, तो और उन्हें भी इस चीज की आदत हो जाती है, उनको भी ये चीजें अच्छी लगती है कि कोई फूल लेके आया, तो सो दैट्स व्हाई ही कुड नॉट अवॉइड दिस. The history which gradually unveiled was that he was once upon a time a alcoholic who used to beat his wife and children and steal money for his alcohol. तो उसकी बैक हिस्ट्री देखो क्या है, पास हिस्ट्री क्या है, कि वो एक अल्कोहलिक था, ड्रिंकर था, जो डेली वाइफ से पैसे लेके ड्रिंक करता था. पैसे नहीं दिए तो उसी वाइफ को मारना, जोड़ना, है ना. और आज वो एक स्पिरिचुअल फिलोसोफर, स्पिरिचुअल गुरु बन गया. इसके ऊपर एक फिल्म भी थी, बहुत पुरानी फिल्म है, शायद आप लोगों ने देखी होगी. उसमें भी राजेश खन्ना की फिल्म थी. राजेश खन्ना भी इसी तरह से एक
स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है। उसके पहले वो बहुत अलग अलग टाइप के धंधे करता है, उसके बाद वो साधु बन जाता है। सो एज अ डेस्टिनी वुड हैव इट, he changed from a bad man to good man. He not only realized his mistake but also went on sharing his bad and good experiences with others and persuaded many drunkards to leave alcohol and accept the path of religiousness. जैसे उसका एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस के ऊपर ही वो स्पीच देता था। कितने लोगों को उसने ट्रांसफॉर्म किया, बैड पर्सन से गुड पर्सन, कितने लोगों की उसने शराब छुड़ाई, है ना। यस, सो मेनी drunkards to leave alcohol and accept the path of religiousness. He started a temple-like meeting place where in front of God they would give up drinking as he went on giving discourses. He became famous as messenger of God. On a particular day in a month, thousands of people gathered to give him offspring of flowers he had to accept as a token of love. This was the reason why he could not stay away from flowers and wanted to get rid of the allergy. The respect for such a man automatically turns into veneration, desire for admiration. लोगों ने फूल देने चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए. दिस इज वेनरेशन. So much work he had done for the downtrodden and not a word of it in the history. The religiousness, the ardency, the sympathetic helping nature had to be dug out. The secretive attitude had literally covered up his history. He had created a revolution and changed the fate of millions. With his chilly, thirstless, and ardent, religious, sympathetic, secretive, and religious natural traits, he improved and got cured with similima. So this was the simple history of this person. So इस पर से क्या रुब्रिक्स सर ने लिए, क्या देखा, है ना, और कौन सी मेडिसिन दिए. तो जो हिस्ट्री उससे मिली, सबसे पहले तो लायर, जो पहले खुद ड्रंकार्ड था, उसके बाद साधु बन गया, है ना. मैनिपुलेटिवनेस, सिक्रेटिव, मतलब फुल ऑफ द बंडल ऑफ साइकोसिस. What was required in this man was a remedy which had its defense psychosis. That is psychotic remedy. The psychosis has to inhibit a psychosis less. All attitudes were hidden, though good in character. जो कुछ भी वो था सब हिडन था, पर जो साइकोसिस उसमें है दैट इज अ गुड साइकोसिस, क्योंकि वो दूसरों के लिए कर रहा है, दूसरों का अच्छा कर रहा है, भला कर रहा है, दूसरों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बैड पर्सन से गुड पर्सन में, दूसरों के लाइफ में चेंज ला रहा है ना. इसीलिए दिस इज गुड साइकोसिस. सो ऑल एटीट्यूड्स वेर हिडन दो गुड इन कैरेक्टर. देयर वाज नो exhibitionism. The remedy was one which had to have psychosis less, had to be good at heart, chilly and thirstless, and could bring about a revolution. So he is the person of revolution, fitting the chronic complaint of easy sprains and strains is also psychosis less. Yes.
सो प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स आर साइकोसिस लेस साइकोसिस के ये सिम्टम्स है। तो कैसे? तो स्प्रेन तभी होगा जब वहां की इलास्टिसिटी लेस हो जाएगी, है ना। हम बोलते हैं ना, चलते चलते, सीढ़ियां उतरते उतरते, एट द टाइम ऑफ स्टेपिंग पैर मुड़ गया। पैर मुड़ना, है ना, फोल्ड होना, ये क्यों होता है? तो बिकॉज ऑफ इलास्टिन। इलास्टिन जब लेस हो जाता है तो इलास्टिसिटी वहां की वीक हो जाती है। दैट्स व्हाई स्ट्रेन्स स्प्रेन्स वहां पे होता है। सो लेस होना, दैट इज द psychosis less. So fitting the chronic complaint of easy sprain and strains is also psychosis less. Less amount of elastin produced in the ligament and muscle causing easy sprain and strain. And the remedy which covered mental makeup, physical makeup, general makeup along with thermal thrust, the miasm was causticum. And the remedy was causticum. And causticum, it is a revolutionary medicine. Yes, anarchist revolutionary. So बहुत ही अच्छी केस, सिंपल, शॉर्ट, सिंपल बट वेरी एक्सलेंट स्वीट केस सर ने यहाँ दी। Yes, so causticum is a remedy we know which has a looseness, relaxation of muscles and tendons causing sprains and strains and prolapses. This is due to probability of less elastin production, which is inhibitory psychosis less. The body and mind speaks the same language and are defined in a similar way. The mental defense was also in inhibitory psychosis, and hence he was not an exhibitionist. Because of psychosis less, he is an in less psychosis, and that's why he was not an exhibitionist. तो वो जो था वो सब उसने हिडन रखा, हाइड किया। यस, सो दिस इज द गुड केस फॉर अंडरस्टैंडिंग किस तरह से हमें केस साइकोसिस में देखना है। साइकोसिस में अब देखो, एनार्चिस्ट और रिवॉल्यूशन, इट इज अ सिपिलिटिक रूब्रिक। ये वही पर्सन कर सकते हैं जो जिनमें गुड सिपिलिस होता है। यस, तो यहाँ पे सर ने साइकोसिस प्लस सिपिलिटिक रूब्रिक लेके इस केस को सॉल्व किया। नाउ वी विल सी द सेकंड फेज ऑफ साइकोसिस और द टाइप ऑफ साइकोसिस, दैट इज साइकोसिस लेस। अंडर यूज ऑफ इंटेलेक्ट, अंडर बिल्ड, अंडर एक्सप्रेस, अंडर ग्रोथ ऑफ इंटेलेक्ट, जो भी है वो सब लेस। This phase of psychosis gives rise to undergrowing and under functioning. When applied to intellect, we have a typical mental retardation of Baraita. As an example, the psychosis less stunts of growth of Baraitas, both physically and mentally. Any stimulus which enters the body through the receptors of our nervous system has to proceed up to cortex, assessed properly, and a response from the brain in the form of proper or just action. In Baratas, we can say the stimulus does not go as high as the cortex, and as it takes a shortcut, a predetermined reaction to any situation is the result. The reaction decision is not as per the situation. This is something called fixed ideas. In such persons, adaptability is conspicuously lacking. Yes. So Baraita is the best example of psychosis less. Baraita में हर चीज लेस है, शॉर्ट है, दैट्स व्हाई
it is psychosis less. So under expression of oneself, तो मेंटल्स किस तरह से होंगे साइकोसिस लेस के? तो हर चीज में नैरोनेस, लेसनेस एंड अंडर डेवलप. सो टॉक इंडिस्पोज्ड, टॉक रहेगा लेकिन इंडिस्पोज्ड, secretive, reserved, छुपाना, under expression of will. Yes. So this is the psychosis less. Wants. In new circumstances, the brain is found incapable, as a sense of helplessness or delusion, as if his legs are cut off, have their origin in his inadaptability. कोई पर्सन कुछ सीख ही नहीं पाता, कोई पर्सन कुछ कर ही नहीं पाता, तो उसके लिए delusion as if legs are cut off, or because of helplessness, because of less understanding, lack of understanding, lack of confidence, timidity, bashfulness. These are all the symptoms of psychosis less. A grown-up person moving in a car, enjoying all the luxuries, finds it difficult to play a cassette recorder up till number of times, even after being taught. Yes, this is because of confidence less, timidity. अभी अभी हमारे यहाँ एक नाइट पे स्टाफ में एक नया स्टाफ ज्वाइन हुआ है, जिसकी उम्र है 35 के ऊपर, और उस इंसान को अभी सिंपल स्कूटी भी नहीं चलाते आते. दिस इज साइकोसिस लेस. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ करेज, टॉक indisposed to, reserved person, non-mixing person, misanthropist. तो कोई 36 एज पे अगर कोई सिंपल स्कूटी अगर नहीं चला सकता, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइकोसिस लेस. Yes. So a person refuses to drive a car saying, I shall never be able to maneuver it through the traffic. Yes. Maybe I will never be able to apply the brakes, or maybe I will be too slow and block the traffic. Yes. But I know one thing for certain, that driving a car is not meant for me. This is complete lack of confidence. This is not necessarily only a Baraita constitution, but certainly indicates a group of drugs which are timid and lack of confidence. So these people are therefore shy and bashful, and even hide their faces or hide behind persons and furniture. They lack the courage even to look up into someone's eyes. Yes, इतना करेज भी नहीं होता है इनमें, बिकॉज ऑफ टिमिडिटी, शाइनेस, बाशफुलनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, करेज. द लैक ऑफ करेज एक्सप्रेसेस एज कवार्डाइजनेस. यस, बहुत ही डरपोक. तो जो डरपोक लोग होते हैं, दैट इज कवार्डाइजनेस, वो कोई भी चीज कर ही नहीं पाते. उनको कितना भी समझाओ, कितना भी आप उनको काउंसिल करो, लेकिन नहीं, वो करेज वो जुटा ही नहीं पाते, इसलिए वो खुद को विड्रॉल कर लेंगे. दैट इज द कवार्डाइजनेस. द साइकोसिस लेस पीपल कॉम्प्रोमाइज इजीली. यस, दे रिकॉग्नाइज बट डू नॉट मूव. एंड इसके लिए फिर डिस्करेज, रेसिग्नेशन, ये रूब्रिक्स बहुत अच्छे.
In grief, when they lose a near or dear one, they suppress their emotion and never cry or express their guilt. Under expression of emotion as well as physical qualities all belong to psychosis less. तो मेंटल में लेसनेस है, माइंड में लेस डेवलपमेंट है, तो बॉडी में भी वैसी रहेगी, है ना. बॉडी ऑलवेज फॉलो द माइंड. सो फिर इनका बॉडी बिल्डअप भी शॉर्ट ही होगा, इसलिए बराइटा का जो बॉडी बिल्डअप है वो शॉर्ट है, डॉट फिश है. सो क्वाइट रिजर्व्ड introverted secretive people desiring obscurity solitude who hate coming into limelight. वो ये लोग कभी सामने नहीं आते, है ना. लास्ट बेंचर्स ये होते हैं. सो बिकॉज दे हैव समथिंग टू हाइड लाइक गिल्ट, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट. ये किसी के सामने अपनी मजबूरी भी नहीं दिखाते, ग्रीफ भी नहीं दिखाते, इनके अंदर का कुछ निकलता ही नहीं बिकॉज ऑफ साइकोसिसलेस, हिडन, ना, इंट्रोवर्टेडनेस, रिजर्वडनेस, सिक्रेटिवनेस. सो ये सब क्वालिटीज होती है इन पर्सन्स की. सो फॉल अंडर दिस कैटेगरी. नाउ तो ये क्लियर है कि दिस पीपल्स आर purely helpless, talk indisposed to, reserved, high desire, under expressiveness of emotions also. Emotions में भी fear, grief, joy, sadness, ये खुल के इनको किसी चीज का अगर बहुत खुशी हुई तो खुल के ये उनकी खुशी भी नहीं एंजॉय कर सकते बिकॉज ऑफ अंडर एक्सप्रेसिवनेस. Indignation more often occurs in people who do not express. Expressive psychosis or even psoric or syphilitic constitution don't take anything lying down, they give back. Yes. तो ये पर्सन कैसे रहेंगे अगर इनके साथ किसी ने कुछ किया, इनको गुस्सा दिलाया, ये पर्सन उस टाइम पे कुछ कर भी नहीं पाते, इसीलिए ये खुद ही डिस्करेज हो जाएंगे और जाने दो कहाँ मुंह लगते हैं, है ना. कौन झंझट में पड़ेगा, कौन इनके मुंह लगेगा, है ना. खुद को विड्रॉल कर लेंगे. दैट्स व्हाई रेसिग्नेशन, डिस्करेजमेंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल. सो अंडर एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, अगर दुख हुआ तो खुल के रोते भी नहीं, खुल के दुख जताते भी नहीं, अंदर के अंदर घुटते रहेंगे. सो लीड्स टू साइलेंट ग्रीफ, वीपिंग व्हेन अलोन, किसी के सामने भी नहीं रोते, उतना डेयरिंग नहीं होता है ना. और ये लोग बार बार बोलते लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, है ना, उनको कैसा लगेगा, है ना. मैं उनके सामने रोया या फिर मैंने मेरा दुखड़ा उनके सामने रखा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचे. ऑल थिंग्स आर नेगेटिव थिंग्स and negative things always come into shallow psychosis. So sitting by themselves during sadness, they do not show their tears, keep on brooding. In short, the discontentment and the sadness is under express. This is under expressive of grief, emotions. Now love, अब देखो इनका लव भी कैसा होता है. बहुत लेडीज की कंप्लेंट होती है, आपको हिस्ट्री में बहुत से लेडीज लोगों ने ये बताया होगा कि नहीं मेरे हस्बैंड वैसे बहुत अच्छे हैं, वो अंदर से बहुत चाहते हैं लेकिन कभी दिखाते ही नहीं, कभी शो ऑफ ही नहीं करते. अगर मुझे कुछ हुआ तो वो केयर बहुत करेंगे, पट से डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, हर चीज ला के देंगे, लेकिन अगर दिखाने की बात आई ना, कभी नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं बोलेंगे, है ना, कि आई लव यू करके. नो, दिस इज अंडर एक्सप्रेसिवनेस ऑफ लव. Yes. So the love of a husband towards his wife sometimes is not expressed directly. In fact, very stiff and pretentious. Pretentious constitutions who appear to be hard, angry,
dictatorial, maybe having a soft heart within. Yes. तो बाहर से बहुत bossing, dictatorial, haughty, egoistic, obstinate, headstrong, और अंदर से इनका दिल बहुत कोमल होता है. अगर वाइफ के ऊपर बहुत बॉसिंग करेंगे, उसको बहुत दबाव में रखेंगे, लेकिन अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो पट से उसको डॉक्टर के पास लेके जाना, उसकी केयर करना, उसके लिए कुछ उसकी सेवा करना, या फिर उसके लिए खाना खाने का बना के देना, कि बिकॉज ऑफ वीक हार्ट, है ना. यस, सॉफ्ट हार्ट. तो तब इनको समझ में आता है लेडीज को, नहीं ये वैसा मुझे बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ होगा तो फिर वो उतनी केयर भी लेते हैं. इस टाइप का ये इनका लव होता है शालो साइकोसिस वाले पर्सन का. तो मे बी हैविंग अ सॉफ्ट हार्ट विद इन, लाइक lycopodium. So invariably the wife may say, I know he loves me, he is very affectionate from within, he cares for me, but he never gives me what I want. He never hugs me, he never caresses me, I long for his touch. I don't know, but he can never do that. It's perhaps his ego which comes in his way. You can never say what is in his mind. I fits with perfect hidden psychosis constitution. Yes. So this is the perfect एग्जाम्पल ऑफ साइकोसिस. बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही एक्सलेंटली सर ने इसे यहाँ एक्सप्लेन किया है कि साइकोसिस लेस लव भी किस तरह का हो सकता है. नाउ हैप्पीनेस. अब साइकोसिस लेस वाले का हैप्पीनेस भी कैसा रहेगा, है ना. जैसे कि ये दिखाने में भी कंजूसी करते हैं तो जताने में भी कंजूसी करते हैं, है ना. इनका हैप्पीनेस भी ऐसा होगा, अंदर से तो खुश होंगे लेकिन ऊपर से नहीं दिखाएंगे कि ये खुश हुए ना. और अगर इनको किसी ने पूछा कि आपको खुशी नहीं हुई, इसमें क्या, सबको सबके साथ होता है, सबको ही होता है, बट अंदर से बहुत खुश है, लाइक दिस. सो इवन द हैप्पीनेस इज अंडर एक्सप्रेस हियर. दिस पीपल नेवर लाफ फ्रीली, लिव aside dancing, even smile at is at a प्रीमियम. यस. और जो और एक्सप्रेसिवनेस होते हैं, एग्जिबिशनिस्ट होते हैं, मतलब साइकोसिस एक्सेस वाले, इनको तो चांस ही चाहिए. थोड़ा सा कुछ अच्छा हो गया, कोई खुशी की बात हो गई, कुछ न्यूज उनको समझ, गुड न्यूज उनके पास आई, तो नहीं, आज तो पार्टी बनती है. दिस इज साइकोसिस एक्सेस. और यही साइकोसिस लेस वाले, हाँ इसमें क्या है, सबको होता है, सबके साथ होता है, इसमें क्या पार्टी करना पड़ता, इसमें क्या जताना पड़ता, इसमें क्या दिखाना पड़ता. दिस इज लेस साइकोसिस हैप्पीनेस. सो नेवर स्माइल as well as smiles at everything, but both came under psychosis. So strictness or looseness or slackness both have psychotic trait. So in aphorism 74, we say Hahnemann mentioning about revolutionary changes. 74 में Hahnemann ने revolutionary changes किस टाइप से मेंशन किए, इन द बॉडी विच इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू. तो पूरे ऑर्गेनोन में हैनेमन ने 74 एफोरिज्म में ही लिखा है कि किस तरह से पैथोलॉजी होती है अकॉर्डिंग टू माइज्म, और किस तरह से बॉडी में चेंजेस होंगे जिस पर से हम माइज्म सिलेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट सोरा में क्या होता है, साइकोसिस में क्या होता है, सिफिलिस में क्या होता है. तो सोरा में मोस्टली इंफ्लामेटरी चेंजेस टिश्यूज में, सेल्स में दिखते हैं, दैट इज सोरा. जहां डिसफंक्शन दिखेगा, सेंसेशन एंड फंक्शन टेम्पररी लूज दिखेंगे, डिस्टर्ब दिखेंगे, दैट इज द सोरा.
और जहां डायलेटेशन है, रिलैक्सेशन हो गया, आफ्टर इन्फ्लामेशन दैट पार्ट बिकम स्वेलिंग, इडिमेटस, पेलनेस, है ना, एंड this is psychosis, and afterward, if that part become destructive, ulcerated, cracks, death of cells is syphilis. So, which include relaxation of organs and tissues. This belongs to psychosis less and reason being underproduction of elastin. So, elastin gives elasticity, recoverability, and control. When elastin is less, it can produce relaxation of limits, looseness, and slackness of control. This is the psychosis less. So psychosis less में elastin less होगा और psychosis S में elastin excess होगा, और elastin excess हुआ तो वहां की elasticity strong हो जाएगी, that part become rigid. Yes. तो मुड़ने से भी मुड़ता नहीं है, स्टिफनेस आ जाता है जब इलास्टिसिटी एक्सेस हो जाती है. सो दिस इज हैप्पीनेस इन साइकोसिस लेस. नाउ मॉरल्स इन साइकोसिस लेस. तो मॉरल्स में क्या परिणाम होगा? मॉरल्स किस टाइप के होंगे? साइकोटिक लेस पर्सन्स के. सो देयर कैन नॉट बी एनीथिंग लाइक under expression of morals. Morals mean control. If we apply the above criteria of looseness and lack of control of morals, then we have an array of modern day attitudes which will come under the trait of psychosis. Morals want of, जिनके लूज मॉरल्स होते हैं, जिनमें मॉरल्स ही नहीं होते, जो लोग जैसे कि कोई पर्सन है और उसके यहाँ कोई मेहमान गए, कोई पर्सन आए, तो ये पर्सन हाय हेलो कुछ नहीं, पानी भी नहीं देगा, पानी पूछेगा नहीं, बैठने के लिए पूछेगा नहीं. दिस इज, हम वही पर्सन जो गेस्ट बन के वहां गया, वो क्या सोचेगा? अरे यार कैसा पर्सन है, दादा पानी के लिए भी नहीं पूछा. मतलब मॉरल्स नहीं है. लैक ऑफ मॉरल्स इज साइकोसिस. मॉरल्स वांट ऑफ, that means lack of morals, which can be syphilitic also. Yes. So lasciviousness, कोई सेंस नहीं सोसाइटी में, सोशल प्लेसेस में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से अपना ड्रेसिंग रखना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए. दिस इज साइकोसिस लेस पर्सन. सो लैसिवियसनेस, करप्टनेस, जो पर्सन्स करप्शन करते हैं, है ना, करप्शंस इज psychosis less. Venal, debauchery, shamelessness, coquettish, flirting, buoyancy, and libertinism all are the types of psychosis less. So psychosis is a big chapter having so many rubrics in our repertory. So it is the big miasm of our organon. Yes. So here psychosis is completed. So 17th chapter now completed here, and the 18th chapter is of syphilitic mentals. तो हमने सोरिक मेंटल्स पढ़ लिए, हमने साइकोटिक मेंटल्स पढ़ लिए. नाउ द सिफिलिटिक मेंटल्स. तो सोरिक मेंटल्स में अगर किसी को कोई कंप्लेंट है, किसी को कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, या फिर साइकोटिक मेंटल्स में किसी को कोई समझा नहीं, कुछ कोई क्वेरी है, या फिर कुछ कहीं अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉब्लम जा रहा है कि किस तरह से इसे समझना चाहिए, तो अभी हम यहाँ रुकते हैं. सिफिलिटिक मेंटल्स हम कल फ्रेश में शुरू करेंगे. और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सिफिलिटिक चैप्टर बहुत ही शॉर्ट है, कल ही फिनिश हो जाएगा, तो अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आज हम थोड़ा ज़्यादा टाइम क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे. अगर किसी को कोई डिस्कस करना है तो भी डिस्कस कर सकते हैं.
साइकोसिस के ऊपर अगर किसी को कुछ पूछना है या फिर कुछ बताना है, एक्सेस जो उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की होगी, तो वो भी यहाँ शेयर कर सकते हैं। सो अनम्यूट हिमसेल्फ एंड शेयर। यस। हेलो सर। यस। सर आजकल हम लोग बहुत लोग देखते हैं, मतलब साइकोसिस एक्सेल, मतलब ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी, बहुत सारे पीसीओएस के पेशेंट, इनमें खास करके बहुत बार मतलब साइकोसिस एक्सेल होता है, मतलब उनमें थोड़ा दिक्कत होती है। तो इनमें हम लोग कंटिन्यू अगर ट्रीटमेंट, आपका क्या इतने साल से एक्सपीरियंस है, क्या हम लोग ओबेसिटी रिवर्स कर पाते हैं, उसमें अच्छा सा ये चेंजेस ला सकते हैं, मतलब ये आपकी क्या इसमें क्या कह सकते हैं आप? ओबेसिटी में ना? देख सकते हैं। हाँ, ओबेसिटी ओबेसिटी के साथ में पीसीओएस है, अभी हमें तो कॉन्फ्लिक्ट मालूम है, लेकिन फिर भी साइकोसिस सर भी बोलते हैं, मतलब वो रिवर्स होना बहुत, इट्स टेक टाइम। तो इसके नहीं बारे में देखो, आप थोड़ा। अगर हाँ। अगर रेमेडी परफेक्ट है। और बच्चे भी आजकल, मतलब आज की जनरेशन में ये बहुत सारे बच्चे फीमेल्स है, आजकल फीमेल में भी ओबेसिटी और पीसीओएस है, इसके बारे में सर आप प्लीज। यस। तो कैसा है, ओबेसिटी, पीसीओडी, ये तो हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया थोड़ा। और उसमें जैसे कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, इम्पोर्टेंट जिस उनके माइंड में इम्पोर्टेंट वो किस चीज़ को देते हैं, उसके लिए उनके माइंड में अगर कुछ इनसिक्योरिटी है तो पीसीओडी होगा। लेकिन जो ओबेसिटी है, जनरलाइज्ड ओबेसिटी, इसका मेन रीज़न होता है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी इन जनरल अगर उस पर्सन को, उस पेशेंट को है, तो सबसे पहले उसे हमें इनसिक्योरिटी को स्ट्राइक करना है। तो इनसिक्योरिटी अगर परफेक्टली आपको मिल जाता है पॉजिटिव फैक्टर, तो इनसिक्योरिटी लेके फिर उसके जेनेटिक डिस्पोजिशंस लेके आप प्रिस्क्राइब करेंगे, और वो रेमेडी जो आपने सिलेक्ट की है वो अगर 100% उसकी परफेक्ट रेमेडी है ना, तो 100% उसकी ओबेसिटी कम होगी। लेकिन ओबेसिटी ओनली मेडिसिन से ही कम नहीं होगी। ओनली इनसिक्योरिटी उसके माइंड से चली गई तो उसका जो बॉडी में सैचुरेशन हुआ है फैट का या फिर और भी कोई अदर चीज़ों का, तो ऑटोमेटिकली कम होगा ऐसा नहीं है। ओबेसिटी अगर आपको कम करना है तो उसके लिए तीन चीज़ें जरूरी है। आई थिंक जो मैं मेरे प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस करता हूँ, हर पेशेंट को ओबेसिटी के एक्सप्लेन भी करता हूँ कि आपको मेडिसिन तो लेना जरूरी है, क्योंकि मेडिसिन मेंटल पे काम करेगी, उसका इनसिक्योरिटी उस वहाँ से जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसे निकाल देगी। लेकिन अगर वेट लूज करना है तो आपको डाइट भी कंट्रोल करना पड़ेगा, साथ में आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो मेडिसिन प्लस एक्सरसाइज प्लस डाइटिंग, तो ये तीन चीजें अगर आप करेंगे तो ही ओबेसिटी पे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, ओनली मेडिसिन से नहीं। आप मेडिसिन दे रहे हैं, उसकी इंसिक्योरिटी कम हो गई, लेकिन पेशेंट ने खाना कम नहीं किया, रिच फूड लेना कम नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं, दिन में खा रहे, बैठ रहे, आराम कर रहे, तो किस कैसे क्या ओबेसिटी कम हो जाएगी, कैसे वेट लूज होगा, है ना? तो वेट लूज करना है तो आपको ये तीन चीजें पेशेंट को बताना ही पड़ेंगी, एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, तो ही मेडिसिन दो, नहीं तो नहीं, ऐसा बोलना ही चाहिए। यस। यस सर, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। मेरा भी यही कहना था, मैं पेशेंट को भी वही समझाता हूँ। और आप ट्रीटमेंट पे कंटिन्यू, लेकिन मुझसे ही आप मांगेगी कि रिजल्ट पूरा चाहिए, तो ये कभी मुमकिन नहीं होगा। आपने क्या हुआ, मैंने टेस्ट किया था, कंफर्मेटरी टेस्ट आपसे हो गया। वेरी नाइस सर, थैंक यू थैंक यू, और बहुत खुश हूँ। क्रेडिट गोज टू यू, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी इतना कॉन्फिडेंस आया ना, 100% पेशेंट को अभी ट्रीट कर सकता हूँ, ये आपने कॉन्फिडेंस दिया। यस। यस सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यस। somebody। यस। और किसी को कोई कुछ पूछना है? अरविंद मस्की,
प्रोस्टेट की क्या इमोशनल पैथोलॉजी है? यस, कौन बताएगा प्रोस्टेट की इमोशनल पैथोलॉजी? क्या सर कॉन्फ्लिक्ट? वो लक्ष्मण रेखा पार करता है मतलब कोई आदमी शायद से वही वही होगा, सॉरी, शायद वही है मैंने शायद। अपने पिछले लेक्चर में ये बताया था प्रोस्टेट का, बताया हुआ है मैंने, फिर भी आज वापस बताएंगे, लेकिन पहले आप बता दीजिए क्या है लक्ष्मण रेखा कौन सी? मतलब टेरिटोरियल ये होता है ना अपना सर, टेरिटोरियल एंगर, नहीं तो मेरा सुनता नहीं है, मेरा कुछ कहना मानता नहीं है, और ऐसे टाइप का। नहीं, प्रोस्टेट की जो प्रोस्टेट के लिए जो मेंटल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो ये है कि सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट। तो मोस्टली आप देखो प्रोस्टेट कब इनलार्ज होता है? 50 के बाद, है ना? एज के 50 के बाद, 55 के बाद प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और आप देखो जैसे 50-55 हो जाते हैं तो जो मेल्स है, आपका माइक बंद कर दीजिए डॉक्टर शीला जहां। यस, आप प्लीज माइक बंद रखिए। तो 50-50 के बाद जो मेल्स होते हैं उनमें जो सेक्सुअलिटी होती है वो नेचुरली कम हो जाती है ना? जो टेस्टोस्टेरोन है वो सिक्रीशन थोड़ा कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो मेल डोमिनेंस है वो कम हो जाएगा। मेल डोमिनेंस मेल में कम होता है आफ्टर 50, और फीमेल में डोमिनेंस बढ़ता है आफ्टर मेनोपॉज। तो क्या हो जाता है, मोस्टली हर घर में, हर पेशेंट में ये प्रॉब्लम आते हैं कि मेरी वाइफ अभी सुनती नहीं, है ना? और ये देखो हर कोई ये बताता है, देखता है, ऑब्जर्व भी करता है, एक्सपीरियंस भी किया है कि मेनोपॉज के बाद वुमेन्स की, लेडीज की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं और मेल हार्मोन्स सिक्रीशन बढ़ जाता है। और मेल में मेल हार्मोन्स कम होंगे और फीमेल हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो 4 दिन सास के, 4 दिन बहू के, इस तरह की ये कहानी है कि ऑटोमेटिकली घर में लेडीज का डोमिनेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर इसीलिए वो फिर बहू पे बॉसिंग करना, हुकुम करना, उसके साथ साथ फिर हस्बैंड पे, फिर वो लेडीज ही बोलेंगे कि ये पहले पहले मैं तुम्हारा सुनती थी, अब नहीं सुनूंगी। पहले तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया, अब मैं नहीं सुनने वाली, है ना? तो ऑटोमेटिकली मेल बिकम द meek and mild, and the women's become डिक्टेटोरियल डोमिनेटिंग। तो क्या हो जाता है, वो डिक्टेटोरियल डोमिनेटिंग होने की वजह से अब इसकी तो चल रही नहीं, इसका तो डोमिनेंस रहा नहीं, इसीलिए इसको जब जब सेक्सुअल एक्टिविटी चाहिए वो मिलती नहीं, इसलिए वहां पे आ जाता है सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट। या फिर इसके मन में अगर वो पर्सन कुछ सस्पिशियस है या फिर उसके मन में अगर डाउट्स है, तो फिर वो उस अपने वाइफ पे डाउट्स लेना शुरू कर जाता है कि ये अब मुझे पूछती नहीं है, मुझे भाव देती नहीं है, मुझे ज्यादा मेरे से ज्यादा दूर जा रही है, या फिर उतनी अटैचमेंट नहीं रही है, ये अब मेरे साथ इसके अटैचमेंट रही नहीं, मुझे लव करती नहीं है, कहीं इसका और तो कहीं है ही नहीं, ये कहीं दूसरी की तरफ तो नहीं देखती। तो दिस इज सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज उसके माइंड में थोड़ी थोड़ी इनसिक्योरिटी आना शुरू हो जाती है वाइफ के लिए, और वो जो एक्टिविटी उसे मिलनी चाहिए सेक्सुअल, वो मिलती नहीं है। दैट्स वाई प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है। यस, अंडरस्टैंड? Yes, sir. Very nicely Yes, sir. explain you. Very nicely. Thank you. थैंक यू, थैंक यू।
यस। हेलो। यस। सबसे पहले ये बताइए कौन बात कर रहा है? हेलो हाँ। सर। सर मैं अरविंद मस्की बात कर रहा हूँ। डिजिटल हैंड राइज कीजिए। कैमरा ऑन करो। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मार्ट है, फिर कैमरा क्यों नहीं ऑन करते? सर पेशेंट का है तो आपका नेट बराबर नहीं है, आवाज कट रही है। यस डॉक्टर मस्के। सर पेशेंट 42 का है तो हाँ, हो सकता है ना। पूछो ना, घर में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अब अभी आपके वाइफ के साथ कैसे संबंध है ना? सेक्सुअल कांटेक्ट कितनी बार होते हैं? वाइफ के लिए कोई डाउट्स है क्या माइंड में? या फिर सेक्सुअल एक्ट के लिए हर बार वाइफ नहीं बोलती है क्या? सर प्रोस्टेटोमेगाली तो लेकिन कॉमन है ना बहुत इसमें, तो मतलब अब 55 60 मोस्ट ऑफ। यस, तो वो लाइफ में ये मैंने जो कॉन्फ्लिक्ट बताया, मैंने जो बातें बताई, ये कॉमन है ना? ये हर किसी के साथ होता है ऐसा, हर घर में होता है। इट इज अ घर घर की कहानी। यस सर। आप देखो ना, हर बहू बोलेंगी मेरे सास मेरे ससुरे बहुत अच्छे हैं, है ना? और सास ही बहुत तकलीफ देती है। मेरे ससुरे की भी नहीं चलती सास के सामने। और फिर सास को पूछो कि ये पहले कैसे थे, बोलना जवानी में, वो बोलेंगी कि अरे बाप रे, पहले तो इतना ये किया, क्या बोलते हो मराठी में, गाजून घेतलं. आता आता कोण ऐकणार त्यांची लाइक दिस? तो ये हिस्ट्री आपको मिलेंगी और ये डायरेक्टली इफेक्ट करती है प्रोस्टेट पे. Yes. ओके सर। Yes. और किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ, पूछना है। एक केस के बारे में पूछ सकता हूँ अभी, साइकोसिस एक्सेस के। शॉर्ट शॉर्ट होगा तो पूछो. यस, शॉर्टली। सर अगर कोई किसी का और क्वेश्चन नहीं है ना तो मैं। अभी तो नहीं है, आप पूछ लो. हाँ ठीक है। सर लेफ्ट साइड में मतलब 30 इयर्स ओल्ड फीमेल है, उसको लेफ्ट हैंड में न्यूरोफाइब्रोमा। फर्स्ट उसको फोर्थ स्टैंडर्ड से हुआ, लेफ्ट राइट हैंड पे, सॉरी राइट हैंड पे लाइपोमा स्टार्ट हो गया। मतलब सेकंड फिंगर के नीचे पाम पे। तो उसका उन्होंने 8th स्टैंडर्ड में अपेंडिसाइटिस हो गया, तो उसके बाद में ऑपरेट किया। ऑपरेट के बाद फिर वो बढ़ने लगा, रिस्ट तक आ गए। न्यूरोफाइब्रोसिस उन्होंने डायग्नोस किया है, लेकिन वो लाइपोमा की तरह दिखते हैं राइट हैंड में। वो शादी के बाद फिर मतलब अभी रिस्ट तक बढ़ गए हैं। 2-3 बार ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद बढ़ गए, तो राइट हैंड में आ गए। पहले उसको 4th स्टैंडर्ड से था, मतलब एज के 8 साल की उम्र में। अ, उसके बाद उसको फैमिली हिस्ट्री लिया तो उसके फादर को भी इस पे क्यूबाइटल रीजन लेफ्ट एब्डोमिन एब्डोमेन पे है उसके। और उसके फादर की 3 मैरिजेस है। पहली वाइफ उनका डेथ हो गया। फिर सेकंड वाइफ इसकी मम्मी है, सेकंड
और नहीं, सेकंड दूसरी है और इसकी मम्मी थर्ड है। और पहले वाइफ की एक लड़की है, उसको कुछ नहीं, लेकिन इसके भाई को भी लाइपोमा है। वो लाइपोमा और उसमें डिफरेंशिएशन उसका मुझे कुछ नहीं मिला अभी तक रिपोर्ट्स। तो उसमें लाइपोमा दिख रहा है और ये भी न्यूरोफाइब्रोमा, मतलब दोनों टाइप बिनाइन ग्रोथ है। तो इसके फादर को एब्डोमिन और इस पे है, लेग्स पे, बाकी कहाँ पे नहीं है। और उनको हाथ में उनको शायद से, हाँ, लेफ्ट हैंड में उनको ल्यूकोडर्मा है, सो ये विटिलिगो है फादर। और फादर आर्मी में थे। तो ठीक है। उसको तो थोड़ा अभी पूछा तो अभी फादर क्या और करना मम्मी है? में भी। अभी क्या सर, करना है? उसका उसका सिफिलिस कैसे, मतलब मैंने ढूंढा तो एग्जैक्ट जर्नी ऑफ केस उसमें क्या क्या कोर निकालना है, मतलब मैंने तो निकाला है। तो थोड़ा आप गाइड यस। गाइड। तो कैसा है, उसके फादर से इसकी शुरुआत हो गई। तो सबसे, क्योंकि वही जीन्स इसमें आए और इसके अंदर भी वही प्रॉब्लम क्रिएट किया, क्योंकि जीन्स आए इससे भी, इसके बॉडी में भी वो कहीं ना कहीं स्टिमुलेट हो गए, उसके बाद ये स्टार्ट हो गया। लेकिन जो फॉल्टी जीन्स है, मतलब जो न्यूरोफाइब्रोमा के जीन्स है, वो तो आए हाँ, फादर से ही। तो फादर में जब वो स्टार्टिंग हुई, तो फादर कि तब का आपको पॉजिटिव फैक्टर एक बार निकालना पड़ेगा, वो कि उनमें क्या इनसिक्योरिटी थी और किस चीज के लिए इनसिक्योरिटी थी। उनसे पूछा, तो, मतलब हाँ, वो तो भी वो जर्नी मैंने लिया वो है सर। एज ए डिल्यूजन, सिपिलिटिक रूब्रिक अब यहाँ पे क्या होगा, वो एज ए डिल्यूजन आपको वहां का लेना पड़ेगा। लेकिन वो सर मुश्किल पड़ता ना, वो तो अभी आर्मी में थी, फिर 97, वो 80 में, 85 में वो रिटायर होके आए। फिर उनका सेकंड मैरिज, मतलब ये मैरिज 88 में शायद हुआ। वो अभी मेरे पास हिस्ट्री थोड़ी नहीं है, लेकिन वो उनको पूछा मैंने। तो वो बोले कि जो भी होता था वो वाइफ हस्बैंड के बीच में ही होता था झगड़ा, क्या लगता था, लेकिन वो पूरी हिस्ट्री नहीं मिल पा रहे। नहीं, तो इसीलिए बोल हाउ रहा टू, मैं, अगर ये केस हाँ, में आपको रिजल्ट पाना है तो फादर को लेके बैठना पड़ेगा, अच्छी तरह से हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, आपको डिल्यूजन वहीं से मिलने वाला है। ओके ओके सर। यस। और सर इसमें उसको, ये ऐसे लड़की को केसेस में लेफ्ट, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, एक तो साइकोसिस है, एक से साइकोसिस है ना? यस सर, यस सर। यस। ओके सर, ओ सर। उसके फादर को लड़की को लेफ्ट आया है, तो उसमें फादर ही है ना, मतलब वो राइट ही है, लेकिन उसको लेफ्ट, सॉरी, राइट हैंड में आ गए और फादर को लेफ्ट में ये आ गया है, फादर से ये आया है, हाँ, मतलब तो फादर को स्टार्टिंग लेफ्ट में हुई थी, तो फादर को इनसिक्योरिटी अबाउट मदर थी कुछ तभी, ऐसा। ठीक है। हेलो सर। चलो। थैंक यू सर। यस, ओके, चलो। तो आज हम ये फिनिश करते हैं, कल मिलेंगे सिपिलिस के साथ। ओके, सो थैंक यू वेरी ओके सर। मच। थैंक यू सर। यस, Thank you, sir. thank you, goodbye, see you tomorrow, take care. Thank you, sir.